Good morning, students. Yesterday we have discussed the formulas for the formulas of trigonometry, that is the trigonometric ratios. What do you mean by the trigonometric ratios? There are 6 ratios, that are the sine theta, cos theta, secant theta, cosecant theta, tan theta, and cot theta. And I told you to learn all the trigonometric ratios so that they can help you while solving the worksheet 8.1. See the questions of 8.1 exercise. First question is, in a triangle ABC, right angled at right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A cos A and sin C cos C. ठीक है, तो इस in this question, first of all take the right angle triangle, and in this question it is given that the right angle is formed at point B. So B पे right angle बनाना है. बाकी two vertices are A and C. You can take A and C. You can take A also here, A B C right angle triangle. Okay, now AB is given, that is 24 centimeter, BC 7 centimeter. You have to find sin A and cos A. First of all, because it is a right angle triangle, while using the Pythagoras theorem, you can find out the third side of the triangle by PGT Pythagoras theorem. First of all, that is hypo square is equal to base square plus perpendicular square, that is 24 square plus 7 square. You get 576 plus 49, that is 625, and hypo is equal to 25. Clear? Now for we have to calculate sin A cos A, sin C cos A, cos C. Sin A cos A means the angle is formed at this point, and sin C cos C is angle is formed at the point at the vertex C of the right angle triangle. So first of all, sin A, while calculating the value of sin A, means the angle is here, and I told you yesterday कि इस जहाँ पे भी एंगल फॉर्म होता है, दैट इज एंगल फॉर्म बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज द longest side of the triangle, and between the base and hypotenuse angle is formed, and in front of that angle perpendicular is there. Okay, बिल्कुल इसके opposite जो है that is perpendicular. ठीक है, तो for angle A perpendicular is 7 centimeter, base is 24 centimeter, and hypo तो same रहेगा, that is 25 centimeter. Okay, now what do you mean by sin A? sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कल आपको एक ट्रिक बताया था लर्न करने के लिए, तो वहां से आपने लर्न किया होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ द परपेंडिकुलर हियर इज 7, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC. तो BC अपॉन AC, दैट इज 7 अपॉन 25. Okay, now cos A is base upon hypotenuse, and the base is 24 and hypotenuse is 25. Clear? Now for the angle C. Now the angle C is formed here. The angle is formed between the base and the hypotenuse. So for angle C, it becomes the base, and for in front of opposite to this vertex C, that is the perpendicular. Okay, now what do you mean by sine of the angle? That is angle is C, so sine C is equal to perpendicular upon hypotenuse. Formula is same, but now the perpendicular is 24 and hypotenuse is 25. In both the cases hypotenuse is the same, but base and perpendicular, they are changed. Now cos C is equal to base upon hypotenuse, and base is now 7 and hypotenuse is 25. In this way you have to calculate the T ratios. Okay, 6 T ratios are there, and you have to calculate. First of all, you have to check whether the angle is formed at which vertex the angle is formed. Okay, तो एंगल अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि एंगल बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में फॉर्म होता है, और एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है दैट इज द परपेंडिकुलर. बस ये क्लियर होना चाहिए. एंगल कहीं पे भी फॉर्म हो रहा है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज,
इन द फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये फिगर आपको गिवन है। PQR is the triangle and the angle is formed at point Q and 12 centimeter and 13 centimeter it's given. तो two sides are given, तो third side you can calculate by the Pythagoras theorem. So hypo square is equal to base square plus perpendicular square. Substituting the values of hypo, that is 13 square, is equal to base is QR square and perpendicular is PQ square, that is 12 square. तो 13 square is 169 minus 12 square is 144, that is equal to QR square. 25 is equal to QR square and QR is equal to 5 centimeter. So right here QR is equal to 5 centimeter. Okay, now you have to calculate the you have to find the relationship between tan p minus cot r. That is the relationship tan p and cot r के बीच में क्या relationship है, that is कि ये subtract हो रहा है। तो tan p क्या होगा, tan क्या होता है, tan of the angle is equal to p निकालना हमने, तो tan p is equal to angle is formed here। ओके, तो इसके ऑपोजिट क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। और टैन का रिलेशनशिप क्या होता है, टैन की रेशो क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपो हमने लिख लिया है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो टैन पी आ गया 5/12। ओके, नाउ सेकेंड इज कॉट आर, कॉट आर। ठीक है, इसको ठीक से लिखना है यहाँ पे, कॉट आर इज इक्वल टू एंगल इज फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स आर। Okay, and cot r is equal to, for the cot r, first of all what is perpendicular and what is base here. Now this is perpendicular, this one is base and hypotenuse is the same. तो for cot r होता क्या है, tan p का, tan ऑफ द एंगल का रेसिप्रोकल है। tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस केस में हमने बेस क्या फॉर्म किया है, दैट इज 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। इन बोथ द केसेस 5 वैल्यू इज 5/12, 5/12। Okay, now the relationship is tan p minus cot r. Substitute the values of tan p and cot r here, that is 5/12 minus 5/12 is equal to 0. Okay, तो ये 0 आ गया इसका आंसर। इस तरह से आपने कैलकुलेट करने हैं इस पूरी वर्कशीट के लिए सेम क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इट्स गिवन। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको साइन ए की रेशो गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में तो आपको जैसे ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है तो उससे आपने एंगल निकालने थे। इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो टी रेशो गिवन है। टी रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये जो आपने ये साइन ए कॉस ए किया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है और इनको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशोज बोलते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो साइन ए होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये जो एंगल आपका क्या है ए है, तो ए आप यहाँ पे बना लो या ए यहाँ पे बना लो, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हम मतलब ए पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, और एंगल 90 डिग्री का सी पे बना लो या बी पे बना लो, बस ए पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्यों फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन ए आपको साइन ऑफ ए एंगल जो है ए गिवन है, दैट इज 3/4। तो ये जो टी रेशोज होते हैं ये एक एंगल आपका 90 डिग्री का आता है और बाकी जो 2 एंगल्स हैं दैट इज एक्यूट एंगल होने चाहिए। और ये जो भी टी रेशोज हैं इसका मतलब एंगल जो है वो किसी और वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, तभी यहाँ पे आपको साइन ए गिवन है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के केस में देखिए परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कि साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको तीनों साइड्स की लेंथ तो मेंशन नहीं है, तो अब वो आपने खुद निकालनी है। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो ये आ गया आपका बीसी अपॉन एसी।
अब ये जो BC है इक्वल के साइन है ना, तो ये BC जो है ना दैट इज इक्वल टू 3 ले लेना आपने, और AC इज इक्वल टू जो 4 ले लेना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ से हाइपो अब की बार गिवन है आपको और परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ से बेस आपने निकाल लेना है। तो हाइपो स्क्वेयर इज 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर दैट इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वेयर, AB इज इक्वल टू √7। ठीक है, तो यहाँ पे इस जब आप वैल्यूज निकाल लोगे तो इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने ज़रूर बनानी है और उसमें तीनों साइड्स की वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड tan ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस ए, ठीक है, तो तीनों वैल्यूज अगर आपको पता होगी तो कॉस ए होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस क्या है √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 4। ठीक है, तो √7/4। नेक्स्ट है tan ए, तो tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 3 और बेस इज √7। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सीकेंट ए। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका कि एक आपने ना राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब है कि एंगल जो है वो आपका ए क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ए एक्यूट है और उसके अलावा जो बी और सी है वो वर्टिसेस आप 90 डिग्री कहीं पे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है कि एंगल जो है वो ए पे फॉर्म हो रहा है। जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए पे जिसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल आप किसी भी वर्टेक्स पे बना सकते हो। बस ये जो ए है वो आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से ना ये टी रेशो की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय कॉट ए इज इक्वल टू 8 एंड कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन ये 15 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इस कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और ए जो है दैट इज द एक्यूट एंगल। तो एंगल को आप इन टी रेशो से अलग नहीं कर सकते हो, ये जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, ये 15 जो है वो कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8/15। अब जो क्वेश्चन है वो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है कि कॉट ए होता क्या है। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल है आपका ये, तो बेस क्या हुआ यहाँ पे, ये बेस है आपका। ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड और बेस जो है वो ए बी। तो अब यहाँ पे 8/15 आ गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 और बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बाय पीजीटी। AC square is equal to AB square plus BC square and AC square is equal to 8 square plus 15 square. AC square is equal to 289 and AC is equal to 17. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17. In this question we have to calculate the value of sin A and secant A. तो sin A क्या होगा, sin A is equal to perpendicular upon हाइपो, ये पहले लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। BC परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC और हाइपो क्या है AC, तो कितना आ गया आंसर 15/17। नेक्स्ट निकालना आपने सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब सीकेंट ए क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में AC और बेस क्या है AB, तो 17/8 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना फिफ्थ क्वेश्चन, वो मैं आपको करने को दे रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में करवाती हूँ, पहले सेवन्थ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है ना इस तरह से, तो वो आप पहले करिए। इसमें गिवन क्या है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8
और इसमें ना एक ये वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, अभी आपने किया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब बेस, यहाँ पे आप ABC राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। एंगल जो है वो अब की बार क्या है, थीटा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। और थीटा जो है वो आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। अब ट्राइंगल का वर्टेक्स नहीं लिया है, ट्राइंगल का एंगल लिया है, तो किसी भी वर्टेक्स पे आपने एंगल बना लेना है, बस राइट एंगल नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, तो हाइपोटेन्यूज इस केस में आ रहा है 113 रूट 8 square plus 7 square, that is 64 plus 49 113। AC is equal to रूट 113। अब यहाँ पे जो वैल्यूज निकालनी है आपने, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 स्क्वेयर इज 1 और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये इस तरह से इसका स्क्वेयर ऐसे नहीं लगाना है, साइन थीटा स्क्वेयर, ठीक है, ये गलत है। इसको आपने कैसे लिखना है, साइन जो टी रेशो होगा उसके ऊपर स्क्वेयर लगाना है, क्यूब होगा तो क्यूब लगा लेना है, पावर 4 है तो 4 लगा लेना है, और थीटा जो है वो एंगल है, एंगल का स्क्वेयर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्यूट एंगल है ना, तो 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री का आप अगर स्क्वेयर कर दोगे तो कितनी लंबी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वेयर उसका नहीं करना है। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू जो है वो क्या है, साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे साइड पे लिखेंगे पहले साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या। तो 8/113 रूट स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 7/113 रूट स्क्वेयर। ओके, 1 माइनस 64 अपॉन रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 64/113, 1 माइनस 49/113। तो 113 को एलसीएम लेना, 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 64। यू विल गेट 113 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट 49/64, ठीक है। सेकंड केस है कॉट स्क्वेयर थीटा। तो कॉट स्क्वेयर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा होल स्क्वेयर। और कॉट थीटा क्या है, क्वेश्चन में गिवन था आपको, कॉट थीटा है 7/8। तो 7/8 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, और उसका स्क्वेयर भी कितना आ जाएगा, 49/64, ठीक है। यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आप खुद करेंगे कल। ओके, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।